Hello. So let's understand today that decision-making section. The way we will do this is we will solve the previous year question paper of 2024. This 2024 is the Jan 2024 decision-making paper. तो इसको solve करते हुए let's try to see what exactly are they looking at. ये एक बहुत ही टिपिकल सेक्शन है जो कि जैट में ही आता है और कहीं पे आता नहीं है। तो इसमें हमें समझना है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, व्हाट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस यू शुड हैव इन ऑर्डर टू मार्क दिस क्वेश्चंस करंटली। बिकॉज वैसे देखने जाएंगे तो वी माइट फाइंड दैट देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर प्रीटी सब्जेक्टिव एंड मोर देन वन आंसर सीम टू बी करेक्ट। बट व्हाट इज इट एग्जैक्टली दैट दे आर लुकिंग फॉर, ये हम इस पर्टिकुलर सोल्यूशन के थ्रू देखेंगे। इसमें let's talk about the basic approach. So when we look at the way that these questions have to be attempted is one is we should take a holistic view. That means you should not just look at one side of the story. There'll be multiple characters in this. There'll be multiple stakeholders. So you have to look at each and every stakeholder, and you have to take into account the benefit of most people involved. तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि आपने जो भी इसमें डिसीजन लिया है वो किसी एक का ही भला करे। Avoid letting personal views biases come in way. Now we are prone to think of things in a certain way. हमारे हिसाब से कुछ चीज सही होती है, कुछ चीज गलत होती है, तो आप अपना पर्सनल व्यू नहीं लेके आएंगे वहां पे। Integrity and ethical behavior should be paramount. So there should be no option which should be marked which calls for violation of any kind of ethics. Absolutely, ethics आपका paramount होना चाहिए, integrity paramount होनी चाहिए किसी भी decision में. You cannot take any shortcut or any measure which violates any of these ethical norms. Avoid options that call for avoiding decision making. Now there will be many options given where uh, it will be like this, that you have to refer to your boss, you will come back after you speak to your boss, or you will let your boss take the decision, or you will let your manager take the decision, or let me check with my CEO and come back to you. इस तरह के options बिल्कुल wrong होते हैं, because यहाँ पे आपको decision लेना है. Whatever be the situation, you have to take a decision. Think hard how the examiner is trying to cloud your objectivity through various options. बहुत सारे options देके वो आपकी objectivity को cloud कर रहा है. So you have to think through. Very interesting section, very interesting cases. Only thing is आपको सही approach इसकी आनी चाहिए. Otherwise you may end up feeling in fact feeling very bad about it. There are so many students who come and say कि हमें तो बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये ऐसा आंसर कैसे हो सकता है, हम तो ऐसा सोच रहे थे. तो आपको वैसा नहीं सोचना है. You have to obviously जो ऑप्शन या जो ऑफिशियल आंसर दिया गया है वो करेक्ट है इनके हिसाब से, तो आपको उसको फाइट नहीं करना है. यू डोंट हैव टू फाइट दैट पर्टिकुलर आंसर एंड थिंक दैट व्हाई इट शुड नॉट बी. रादर यू शुड फोकस ऑल योर अटेंशन ऑन व्हाई इट शुड बी द आंसर. जब आप ये करोगे देन यू विल रियलाइज कि ओके दिस इज व्हाट द एग्जामिनर वाज लुकिंग फॉर. नहीं तो अदरवाइज एज लॉन्ग एज यू कीप फाइटिंग एंड you keep insisting that whatever option I marked is correct, you will not learn the lesson behind it, and you will not then suitably amend your actions in the next question. So आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें फाइट नहीं करनी. जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन को समझना है कि वो सही क्यों है. So let's take the first case here. It talks about Raman. So this now इसका these passages are pretty straightforward. यहाँ पे कोई ऐसा complicated situation नहीं होती है. यहाँ पे ये रमन है जो कि किसी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से, मे बी IIT से आया है, एंड he joined this app-based company. You can look at it as maybe Zomato, Blinkit, or whatever. Blinkit होगा ये. And he manages with zeal. And उसके एक साल के बाद में काफी अच्छा उसका परफॉर्मेंस है. उसके बॉस ने उसको फास्ट ट्रैक कर दिया, प्रमोशन, डिलीवरी मैनेजर बना दिया, एंड उसको बोल दिया कि तुम CEO बन जाओगे. Now he obviously pursued entrance exams because he wanted to have a greater career trajectory, and he got a place in country's best business school, maybe IIM Ahmedabad, known for a strong alumni base. So he was delighted. अब 3 महीने हैं उसको ज्वाइन करने में, तो यहाँ 1 महीने का नोटिस पीरियड है. तो he thought, why should I leave right now? Let me add to my work experience. That will help me after graduating. So he decided not to share the news. Now flying groceries को एक अपडेट चाहिए फंक्शनैलिटी के लिए. तो this project was expected to take 6 months. Surat wanted Raman to lead this project because his leadership was critical for project success. However, Raman knew that he would be there for only 3 months. He was not sure whether he should accept the project.
project would take 6 months. He will be there only for 3 months. So he was not sure. So which of the following information, if true, will best assist Raman in accepting the role of leading the project? So on what basis will he feel comfortable accepting the role? First option says Raman had previously taken many projects home and business school would have no classes during weekends. Now here the assumption is that you will be doing these projects parallel to your business school. Now that doesn't happen. It violates all kinds of norms. It violates all kind of ethics. You cannot keep working in an institute, sorry, in a company and then be attending college as a full time. So this is totally wrong. The last two projects Raman led were successfully completed by his subordinates during his exams. Okay, so last two projects जो उसने start किए वो उसने complete नहीं किए. जब exams थी तो he let his subordinates complete and they did that successfully. So this definitely should give him confidence because last two projects में we remember the last few successes, right? अगर कोई cricketer है तो अगर last two matches में उसकी century है तो he'll feel much more confident. So this can be a good option. We'll shortlist it. Raman could requisition more human resources to his team for the next 3 months. और रमन could requisition और लोगों को ले सकता है, लेकिन क्या इससे प्रोजेक्ट हो जाएगा? क्या इतना ये इज इट प्रोपोर्शनल? तो अगर आप 6 महीने लगने हैं और आपने थोड़े बहुत एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ले लिए तो जो चीज एक जेस्टेशन पीरियड जिसका होता है 6 महीने अगर उसको लगने हैं तो आप डबल आदमी लगा के 3 महीने में कर दोगे तो इट डजंट हैपन लाइक दैट. दिस इज नॉट लाइक बिल्डिंग अ वॉल और सम हाउस यहाँ पे 3 लोग उसको इतनी देर में, और उसमें भी एक लिमिटेशन होती है. एवरी प्रोसेस टेक्स time period. So just by requisitioning more human resources, you can't expect to complete in next 3 months. दूसरा ये कि आप अगर requisition करोगे, you ask for more people, they will ask you, why do you want more people? So you can't say that I want to leave in 3 months and therefore I want to requisition more resources. This is not a very good option. Suraj might advise against the update if he got to know that Raman was leaving. So this has got nothing to do with this. Okay, on this basis he will not accept, right? During his time with Flying Groceries, Raman finished some projects ahead of schedule. Now, this also might look like a tempting option. Raman finished some projects. देखो यहाँ पे है last two projects. वो उसके subordinates ने किए थे. यहाँ पे some projects ahead of schedule. This now again whether this project could be completed ahead of schedule. दूसरा how much ahead of schedule? That also is not clear. Right? How much ahead of schedule? 1 महीना, 1.5 महीना या 1 हफ्ते या 2 हफ्ते. तो यहाँ पे तो आप उसको 50% कट शॉर्ट करने के टाइम की बात कर रहे हो आप, उसमें से 6 months में से 3 months कम करने की बात कर रहे हो. सो दैट डेफिनेटली विल नॉट गिव हिम कॉन्फिडेंस द वे दिस सेकंड, क्योंकि उसको पता है वो चला जाएगा. तो अगर सबऑर्डिनेट्स के ऊपर उसको कॉन्फिडेंस है देन ही विल एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट. सो सेकंड इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर हियर. फिफ्थ इज नॉट द करेक्ट. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ऑप्शन 3 और ऑप्शन 5 में प्रोजेक्ट को अहेड ऑफ शेड्यूल से करने की बात की गई है, जिसका कि कोई यहाँ पे we can't say that just by having more people, or we can't say that just because he had finished some projects ahead of schedule he will be able to do this also. Whereas last two में उसके subordinates ने complete किया था, that means they have become quite capable now, so he would have confidence कि वो कर देंगे. Therefore second is the correct answer. Let's look at the next question. After a couple of months, Raman resigned. Suraj was shocked by Raman's resignation and asked him to reconsider his decision. When Raman expressed his inability to continue, Suraj felt betrayed. This led to a series of heated arguments between them and they swore to never work together again. Raman joined the business school, however, he soon realized that summer internships were approaching. Consequently, he would require verification of his responsibilities from Flying Groceries. Which of the following is the most appropriate for Raman to obtain his verification? Now, Raman wants to obtain his verification of responsibilities. Raman was a bona fide employee of this company. Bona fide employee means in good faith. ऐसा तो है नहीं कि वो वहां पे कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा था या कुछ और कर रहा था हैंकी पैंकी. ही वाज अ प्रॉपर एम्प्लॉई ऑफ दैट. सो ऑब्वियसली उसको अगर वेरिफिकेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी करवाना है तो ही हैज टू राइट टू द कंसर्न पर्सन. फर्स्ट ऑप्शन सेज he should write a sincere and professional apology letter expressing regret for the argument Raman had with Suraj. Now, why would you do that? आपको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका वेरिफिकेशन कराना है. Why would you send that letter or that mail to Suraj? Because you are not asking for some undue favor. You are asking जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वेरीफाई कर दो. और तो कुछ नहीं मांग रहा वो. ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी फेवर. Therefore, he does not need to write a sincere and professional apology letter expressing regret. Because यहाँ पे अब एक और चीज होती है. क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर है
सर्टन जो सर्टन टास्क हैं वो सर्टन लोग करते हैं, तो ये इस तरह से वेरिफिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर वाले करते हैं। तो आपने सीधे सूरज को लिख दिया। अब सूरज सपोज करो, सूरज बोलता नहीं मेरे को नहीं देना, फिर आप क्या करोगे? हु विल यू गो टू? तो अगर एचआर वाला है, सो यू फर्स्ट गो टू एचआर। इफ एचआर says no, then you can always approach Suraj and you can try to reason out with him. But writing at the first instance to Suraj is not done. He should contact the HR representative to facilitate the verification. Yes, HR representative को सही है, उसको अगर सपोज पे स्लिप लेनी है वहां से, उसको अगर कुछ भी एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लेना है, तो ये मना थोड़ी कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज ही हैड an argument before he left does not mean that he will not be given all these things, right? उसका जो भी वहां पे सेटलमेंट है, उसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो तो एचआर का काम है ना। तो ही शुड राइट टू एचआर, दिस लुक्स ओके, वील कीप इट। Raman should re-establish communication through social media. Now this is totally no. इस तरह के ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं कि आप सोशल मीडिया पे आके किसी के बारे में कुछ बात कर रहे हो या कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो। Why can't you talk one to one directly? Why do you have to take the help of social media platforms? So this is totally wrong. You write an email to Suraj emphasizing Raman's role and responsibility, request him to approve. Why should you write to Suraj? Suraj is not the person who does these things, right? You will have to write it to the concerned person. Why would you write to Suraj just because you were once Suraj blue-eyed boy and Suraj promised you to make you the CEO and all that? It does not mean that you are an equal of Suraj. तो ये भी गलत है। Raman should reach out to mutual acquaintance within the company and ask her to interview. Why would you do that? बीच बजाओ किसी को, कोई ऐसा इनका कोई इस तरह की फाइट थोड़ी है कि कोई बीच वाले को किसी को लेके जाओ। दिस ऑल्सो एन इनडायरेक्ट एंड अवॉइडेंस वे। ये भी एक तरीका अवॉइड करने का है कि आप उससे डायरेक्टली बात नहीं करना चाहते वन टू वन। एंड व्हाई वुड यू बेसिकली वांट, व्हाई आर यू अज्यूमिंग दैट वो आर्ग्यूमेंट उस टाइम का हुआ था तो दैट विल ऑल्सो कैरी ऑन टिल नाउ। सी मेनी टाइम्स व्हेन यू लीव देयर इज बिटरनेस, बट आफ्टर दैट इट सेटल्स। द पर्सन, both sides get involved in their day-to-day activities and then this incident fades from the memory. ऐसा कोई इसमें ऐसी bitterness नहीं रह जाती। तो ये भी गलत ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन सेकंड है, यू शुड कॉन्टैक्ट द एचआर रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Raman received a verification letter from Flying Grocery outlining his basic job responsibility during his tenure. However, Raman required a document to substantiate the additional responsibility he undertook by going beyond his call of duty. Sadly, he did not have any documentation of such additional responsibility. Now, time to time उसको additional responsibility दे दी जाती थी। बॉस बोलता हुआ ये भी देख ले यार, वो भी देख ले यार। अब कोई इसका डॉक्यूमेंटेशन है नहीं, तो अब उसको वो भी चाहिए। बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वेरीफाई हो गई, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बेस्ट हेल्प सब्सटैंशिएट द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रमन ओवर टू? तो उसको कैसे सब्सटैंशिएशन मिलेगा कि हाँ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई कैन इंक्लूड इन माय सीवी? Raman should collect testimonials on his additional responsibilities from his ex-teammates at Flying Groceries. So he should uh, write to his ex-teammates or talk to them on phone and say that, see, if you can get some emails out, or if there's anything with you which says that, yes, I did these additional work, तो क्या आप भेज सकते हैं? So his ex-teammates would be, I'm sure, amenable to doing that, क्योंकि वो अपने ex-teammate से झगड़ा करके तो निकला नहीं है। तो ये एक पॉसिबल ऑप्शन है। Raman should write a post on social media. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। Raman should reach out to recently recruited chief supply chain officer at Flying Groceries. Now, some people mark this as an answer to highlight the additional work he contributed. But the problem here is that this guy is recently recruited. Now, why would he verify the additional responsibilities when he doesn't even know about them? Chief supply chain officer is a new person here. He was not there when Raman was there. So he has absolutely no, he would have absolutely no interest uh, इन ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये एडिशनल वर्क इसने किया है नहीं किया है, क्यों किया है। तो अगर होगा भी उसको इंटरेस्ट, तो वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कहाँ से ढूंढेगा, किसको बोलेगा? सो व्हाई वुड ही डू दैट? सी इफ ही स्टार्ट्स नाउ गोइंग अराउंड ट्राइंग टू टेल पीपल कि यार इसका निकाल दो, कुछ निकाल दो, तो लोग उसको पूछेंगे यार क्यों, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स? यू आर नॉट देयर, सो यू सिंपली से नो। सो रिसेंटली रिक्रूटेड होने के कारण दिस ऑप्शन गोज आउट। Raman should create documentation detailing quantifiable metrics and results about his extra work based on memory. ये तो खुद सेल्फ अटेस्टेशन हो गया। तो सेल्फ अटेस्टेशन थोड़ी नहीं चलता है, right? You can't include a self attestation as an experience certificate or additional responsibility. So this is also wrong. You should call Suraj and explain that he will not be able to get a consulting or operations job. सूरज बोलेगा हाँ ठीक है, अच्छी बात है, मैं तो तेरे को कह ही रहा था कि चीफ ऑपरेशन ऑफिसर बना दूंगा, तो गया है तो भुगतो। तो दिस इज ऑल्सो यूजलेस ऑप्शन। तो वेरी क्लियर ऑप्शन इज वन। सो इस वाले जो सेट में आपको हो सकता है इसमें 3 और 1 में कंफ्यूजन हो रहा हो, राइट? सो 3 एज आई सेड
रिसेंटली के कारण बाहर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन में आपको, आई डोंट नो, मे बी फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूजन हो सकता है, बट ये प्रोफेशनल अपॉलजी लेटर वगैरह लिखने का कोई मतलब नहीं है। इट वॉन्ट गेट यू एनीथिंग। जो आपका काम है वो एचआर वाला करके देगा। एंड दिस वन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी, ये क्लियर कट है थोड़ा, लास्ट टू प्रोजेक्ट्स। ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेट नाउ। ABC Business School was a school with a difference, regarded as one of the top business schools in West India, but relatively unknown beyond that. School catered to smaller organizations seeking to hire students for sales and marketing positions, with occasional openings in HR roles. The students were open to the secure job opportunities even if they offered relatively lower salary. तो ये एक अलग टाइप का स्कूल है जहाँ पे कोई ऐसा कोई, देयर वाज बेसिकली, इट केटर्ड टू स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें सेल्स मार्केटिंग के लिए लोग चाहिए वो यहाँ पे आते थे। कहीं कहीं पे एचआर में भी रोल मिल जाते थे इनको। इन्हें सिर्फ सिक्योर जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए स्टूडेंट को, भले ही थोड़ी सी कम सैलरी पे मिले। पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इन्हें भी कोई टैलेंट नहीं चाहिए था, इन्हें सिर्फ ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो कि ऑर्डर्स फॉलो कर सकें। और स्टूडेंट की स्ट्रेंथ थी एलुमनाई था, जो कि बार बार आते थे इंस्टीट्यूशन रिक्रूटमेंट के लिए। तो इसी कारण स्कूल कंटिन्यू कंटिन्यू रहता था एग्जिस्टेंस में। गिवन द प्लेसमेंट रिकॉर्ड, द स्कूल अट्रैक्टेड a specific segment of business school aspirants who wanted a solid job but were not excited about learning। तो ऐसे स्टूडेंट आते थे जिन्हें सिर्फ जॉब चाहिए, ऐसा कोई लर्निंग वर्निंग का, उनका डेवलपमेंट का कोई इच्छा नहीं थी। Recently, some alumni of ABC threatened that their children should be given preference in admissions or they would withdraw as recruiters. Director, however, was hesitant about allowing alumni to interfere in the school because the fairness of admission process had earned ABC high respect within the corporate world that recruited from the school। कुछ alumni आए वहां पे और उन्होंने थ्रेटन किया कि इनके बच्चों को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए एडमिशन में, अदरवाइज दे वुड विड्रॉ एज रिक्रूटर्स। डायरेक्टर जो था वो हेजिटेंट था, क्योंकि इसकी जो फेयरनेस ऑफ एडमिशन प्रोसेस थी, दैट earned the school a good amount of respect within the corporate world. Which of the following, if true, would best help director not to worry about pandering or catering to those alumni? So we have to figure out from this which will help in director absolutely rejecting this particular uh, request from the alumni. No business school in the region has allowed alumni any say in managing the operations. Now, this is not a good option because आप एक अपने टाइप के बिजनेस स्कूल, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है। ईच स्कूल हैज इट्स ओन सेट ऑफ peculiarities एंड रिक्वायरमेंट्स। यू कैन जस्ट कंपेयर कि दूसरे लोग नहीं करते तो हम भी नहीं करेंगे, so this is always a bad option। ABC has not entertained any request from the alumni till date। This is also not a good option। आज तक नहीं की है, लेकिन there is always the first time। So just because you have not entertained any request does not mean that you will not do so ever। हो सकता है कोई रिक्वेस्ट ठीक भी हो, इसलिए this is not a good reason। The alumni depend upon ABC success to enhance their employability। अब ये जो alumni है ये भी डिपेंडेंट है एबीसी की सक्सेस के ऊपर। तो जैसे एबीसी इनके ऊपर डिपेंडेंट है, वैसे ये भी इसके ऊपर एबीसी सक्सेस के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एबीसी डज नॉट सक्सीड देन दीज alumni और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी वो भी कम हो जाएगी। देयरफॉर it is mutually beneficial for both of them to support each other। Therefore, this should give the director the confidence कि let's not worry about giving in to these guys। So this looks to be a good option। Alumni was the reason that ABC was able to attract corporates। Now, alumni were the reason that ABC was able to attract corporate. This is okay. This is okay. But here, this doesn't give uh, the director that kind of confidence कि इसको हम मना कर देंगे, right? The alumni were the reason that ABC were able to attract corporates। तो ये तो rather this fourth is an option that will in fact go the other way। It will tell the director to worry about pandering to those alumni because the alumni is the reason. And if the alumni basically um, are not happy with you, then you may not be able to attract corporates। So this works the other way। This will rather uh, help the direction reach the director think that I should give in to the request of these alumni because they are the reason that I am able to attract corporates। So this is exactly opposite of what is being wanted here, and therefore it is not the correct answer।
Some of the alumni was regularly teaching as guest faculty. That's okay. Guest faculty है. Some of the alumni. Now, are these the same alumni? दूसरा, गेस्ट फैकल्टी मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. इट इज नॉट ग्रेट, a big deal. You can get as many guest faculty that you want. So therefore, this is will not give any confidence that I should reject these guys. So this is uh, a non-issue. Correct answer is yes. C. The alumni depend upon ABC success. Therefore, it will be in their interest only to continue association with ABC school, and therefore ABC school should not give in to them. So third is the clear answer. Across the country, business schools were ranked by popular magazines. A few business schools in the same region were applying for rankings, hoping that rankings will affect the visibility among corporate houses and recruiters. To achieve a good rank, ABC faculty members who have primarily focused on teaching thus far, would need to actively engage in research and consulting. The director was aware that asking the faculty to switch to research and consulting would not be easy. Which of the following will best help the director not to worry about applying for rankings? तो अब यहाँ पे बिजनेस स्कूल की रैंकिंग्स होती है पॉपुलर मैगजीन में. कुछ बिजनेस स्कूल अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए, ये सोचते हुए कि हमारी रैंकिंग अगर अच्छी होगी तो हमारी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी. अब इन्हें भी अगर ऐसा करना है तो इन्हें अपनी टीचिंग से फोकस हटा के और रिसर्च कंसल्टिंग पे करना है, और जो कि उनके लिए आसान नहीं है. तो डायरेक्टर ये नहीं करना चाहता. ही डज नॉट वांट टू अप्लाई फॉर रैंकिंग्स. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बेस्ट हेल्प हिम डिसाइड दैट ओके लेट मी नॉट apply for ranking, it's not going to be of any use. So ABC's placements in the previous year were completed in 4 days. Now ये एक साल की बात है. तो will this help the director in applying, not to apply for, not to worry? तो थोड़ा करेगा. Yes, we can say that this could be an option. That last year आपने 4 दिन में complete कर दिए थे, तो you are not dependent upon these kind of rankings and all. तो इसको हम एक shortlist करके रखते हैं. ABC would never break into top 40 ranks in the country when it applied earlier. That's okay. But this does not tell the director not to worry. In fact, it might tell him to apply so that they get into top 40, because they want to get into top 40. That's why they had applied earlier. So this is not correct. The alumni are aware that ABC offers a retainable talent pool. तो alumni को पता है कि ABC में अच्छा talent pool है, तो हमें किसी ranking को देखने की जरूरत नहीं है. See, ultimately, through rankings, what are you trying to do? You are trying to make the recruiters aware that this is a good business school. But वो already aware है कि ABC जो है उसमें एक retainable talent pool मिलता है. तो then what is the need of again going about and doing this ranking business? Therefore, this looks to be again another possible answer. We'll keep it. Alumni do not care for teachers or classes in general. इससे क्या लेना देना? Ranking तो ranking है. Alumni do not follow research publications in general. See, alumni do not follow research. Follow is a different issue, but research publications में जो rankings आती है वो तो पता पड़ी जाती है. वो तो न्यूज़पेपर में भी आती है वो रैंकिंग, वो तो हर जगह आती है. They may not follow the research publications in general, but the research publications जो भी इनकी rankings है, they are not restricted to there. ये तो हर जगह चली जाती है. तो this is not a good idea. Good point that will help him not to worry. तो अब आपके पास में 2 पॉइंट बच गए. वन इज की लास्ट टाइम के रिक्रूटमेंट 4 दिन में हुए थे, और सेकंड इज की alumni is aware. See, ultimately this particular whole thing is about making corporate aware and improve your visibility. But अगर already visibility है तो फिर इसको जरूरत नहीं है. So therefore 3 is a much better answer. 1 में ये है कि ये पिछले साल कंप्लीट हो गए थे, तो पिछले साल हो गए थे, तो अब इस साल होंगे नहीं होंगे, और एक ही साल का है तो डेटा, तो therefore this is not really very satisfactory. A few faculty members complained to the director regarding lack of attendance and seriousness among many students during classes and exams. The director knew this had been the case for decades before, but became more rampant in the last few years. He was also aware that classes were mostly rituals conducted to tell the world that ABC believed that education had little bearing on placements. However, he believed that students must be told to attend class and take exam with serious attitude. तो अब अटेंडेंस नहीं होती है, सीरियसनेस नहीं है स्टूडेंट्स में, तो आपको somehow you have to convey to the students that they should attend the classes and take exams with a serious attitude. Which of the following announcement by the director will best ensure that faculty stop complaining about student attendance? तो इसका बिना इवन देखे हुए भी हम बता सकते हैं कि आप अगर कुछ पेनल्टी लगा दो. रिसेंटली इफ यू आर ऑल अवेयर, डीयू में यही हुआ था किसी कॉलेज में. वहां पे अटेंडेंस नहीं होती थी, तो एक सडनली वन इन वन सेमेस्टर द डीन सेड दैट
I will not allow people who got attendance below certain benchmark to attend to give the exam. And almost 70% students were in that category. बहुत हल्ला हुआ था, थोड़ा बहुत डाइल्यूट किया गया था, लेकिन उसके बाद सब सुधर गए. तो आपको ये चीज केवल पनिशमेंट से ही रुक सकती है. Faculty members who make classes very engaging. See, the idea is not to enhance the learning in the classes. The idea is to make them attend. So engaging वगैरह की जो है इशू उसको हटा लो. Students should be asked to pay a monetary penalty. ये तो आप उसको justify कर रहे हो. There will be many students who will pay the penalty and they will sit. So you are trying to incentivize them for a wrong behavior. That's wrong. Students should be rewarded for contributing to in-class discussion. Now, reward मतलब क्या है? इनके लिए reward बाहर बैठ के को ज्यादा मिलता है. Forget about sitting in the class and contributing and getting a reward. They feel much better rewarded when they are outside not attending. So therefore, this is not a good solution. Students who attend every class should be given thank you notes. This is also a very ridiculous suggestion. Only students with at least 85% will participate in placement. अब देखो, this is hit them where it hurts. Placement is what they have come here for. आप अगर प्लेसमेंट में नहीं बैठने दोगे तो उसका तो पूरा 2 साल वेस्ट होगा, जिंदगी वेस्ट होगी एक तरह से. तो यहाँ पे आप इसी तरीके से इंश्योर कर सकते हो कि स्टूडेंट एटलीस्ट क्लास में बैठे. तो फिफ्थ स्टूडेंट का करेक्ट आंसर. So I hope this passage and the questions are clear. Let's look at the next one. Deep Sea is a natural gas extraction company that retrieves natural gas from rock formation beneath the seabed. ठीक है, तो ये गैस ऊपर लेके आते हैं. एक्सटेंसिव पाइपलाइन नेटवर्क है और गैस रॉक फॉर्मेशन में प्रेशराइज्ड होती है. It comes to the surface and excessive pressure can burst leading to uncontrolled gas release known as blowout. तो अगर सपोज करो कि excessive pressure हुआ, so it can lead to a blowout, and which is very very costly, and it has also not just environmental damage but also reputation loss and financial loss. So therefore, a blowout has to be avoided at all costs. Impacted section requires a complete replacement. Therefore, blowout is a very very serious thing. Now there are 3 levels. 3 is the part under the seabed, 2 is above the seabed, and 1 is near the surface. तो मल्टीपल ब्लोआउट प्रिवेंटर वॉल्व्स चाहिए इन्हें अलग अलग लेवल्स पे. वॉल्व्स जो होते हैं वो नॉर्मली बंद रहते हैं, बट प्रेशर अगर बढ़ गया तो उनको रिलीज किया जा सकता है, खोला जा सकता है टू रिलीज द प्रेशर. Number of valves localize the pressure release. Greater number of valves providing a backup mechanism, helping in improving pressure localization in case of blowout. Given that valves themselves can occasionally malfunction and not release the pressure when needed, using a high number of valves ensure that a malfunctioning valve can seek the safety of a nearby functioning valve. अब वाल्व सपोज नहीं खुला उस टाइम पे, तो इसीलिए उसके आसपास के वाल्व हेल्प करते हैं वहां पे. सो देयरफॉर देयर हैव टू बी अ नंबर ऑफ वाल्व्स दैट कैन गिव अ बैकअप. वाल्व 2 तरीके से मैलफंक्शन कर सकता है. इट मे फेल टू रिलीज प्रेशर, और या फिर इट कैन लीक गैस ड्यूरिंग रेगुलर ऑपरेशन. व्हेन द वाल्व मैलफंक्शन इज नेसेसिटेट्स मैनुअल रिप्लेसमेंट. वाल्व जब खराब हो जाता है तो उसको रिप्लेसमेंट मैनुअली करना पड़ता है. इन डीप सी नेटवर्क 30% of valves are located level 3, which is the deepest level. Remaining are evenly distributed between the top 2 levels. These valves are critical to ensuring safety and are exclusively supplied by Go Valve, highly specialized manufacturer. Go Valve has recently proposed a maintenance package for the valves, which includes a clause that whenever a valve at level 3 malfunctions, all valves at that level will be replaced. Accepting the clause will cost a significant premium. Management of Deep Sea have the following pieces of additional information. Valves are known to be prone any malfunction in all these 5. Each of the following combination of additional pieces of information will help the management of Deep Sea the most in accepting the clause. अब आपको ये clause accept करना है कि अगर आपका एक valve खराब हुआ level 3 पे, तो आपके सारे valves वहां पे replace कर दिए जाएंगे. अब obviously this comes at a significant premium. So we have to help them decide which of these factors और combination of factors will help them decide हाँ यार ये एक अच्छा ऑप्शन है. तो valves are known to be prone to malfunction. So ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज करो कि valves यहाँ लिखा होता है they are not prone to be known to be prone to malfunction. That means वो malfunction बहुत कम सेल्डम होते हैं या होते ही नहीं है. तो फिर ये लेने का मतलब नहीं ना कि आपका एक वाल्व अगर malfunction हो तो सारे रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये लेने का मतलब नहीं होता. लेकिन they are known to be prone, that means they are vulnerable. सो ये तो एक अच्छा पॉइंट है जो कि आपके मैनेजमेंट को कन्विंस करेगा कि हाँ ये ले लो. Any malfunction in one valve often result in leakage from the neighboring valves. अब अगर एक valve में malfunction हो गया तो neighboring valve से भी लीकेज आएगा. This also then
हेल्प्स द मैनेजमेंट डिसाइड, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक मेल फंक्शन हो गया तो बाकी के भी वॉल्व्स खराब हो जाएंगे या उसमें से लीकेज हो जाएगा, तो दैट मीन्स सारे ही चेंज हो जाएंगे। अगर एक आपका खराब हुआ तो सारे ही चेंज हो जाएंगे, दैट्स गुड फॉर यू। सो दिस ऑल्सो इज हेल्पफुल। तो ए और बी तो डेफिनेटली होने चाहिए आंसर में। तो अगर हमने देखा कि ए और बी हमें इन दो में मिल गए। सी सेज गो वेल विज रेडी टू नेगोशिएट डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट आपको पहली बात तो पता भी नहीं कितना डिस्काउंट, सिग्निफिकेंट प्रीमियम है। कोई अगर 1,000 रुपए की चीज आपको 5,000 रुपए में दे रहा है और फिर कह रहा है कि मैं 2,000 रुपए कम कर देता हूँ या 40% कम कर देता हूँ, 30% कम कर देता हूँ, तो दैट विल नॉट हेल्प यू डिसाइड, बिकॉज इन एनी केस यू आर पेइंग मच अबाउट दिस। सो नेगोशिएट अ डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट है पहली बात तो ये नहीं पता। दूसरा, इज इट वेरी इंपॉर्टेंट? सी, जब आपको वेन यू आर पेइंग समथिंग ऑफ अ प्रीमियम टू गेट पीस ऑफ माइंड, यू वॉन्ट नॉट माइंड पेइंग अ लिटिल मोर। तो दिस शुड नॉट फीचर एज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच यू आर कंसिडरिंग। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्योरली आपकी रिस्क जो है वो आपको मिटिगेट करनी है। रिप्लेसिंग द लेवल वॉल्स एट लेवल 3 इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब विच इज बेस्ट डन बाय गोवाल। दिस अगेन इज अ गुड रीजन। रिप्लेसिंग बहुत डिफिकल्ट है और ये गोवाल भी करता है। द चांस ऑफ प्रेशर बिल्डअप्स आर हायर नियर द सी बेड। नाउ नियर द सी बेड मतलब क्या है कि ये सी बेड है, दिस इज अ सी बेड, तो इसके ऊपर या इसके नीचे, वी आर नॉट क्लियर हियर इन दिस, राइट? ये लग सकता है। इनफैक्ट आई वाज quite convinced that it should be A, B, and E. But then when you look at it closely, you will realize that chance of pressure buildups are higher near the seabed में। यहाँ पे ये लेवल 3 पे करना है। लेवल 3 में जो आपके वाल्व्स हैं वो सीबेड के अंदर है। तो नियर द सीबेड मीन्स कि वो तो लेवल 2 वाले हैं। तो लेवल 2 वाले या लेवल 3 वाले, ये क्लैरिटी नहीं आ रही। तो ये नियर द सीबेड इज अ वेग थिंग हियर, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट करेक्ट। करेक्ट आंसर इज replacing the valves at level 3 is a very difficult job which is best done by go valves. So therefore आप उसी को दे दो, और एक अगर खराब हुआ तो वो सारे के सारे वही करेगा, एंड therefore A B D this becomes a better answer than A B। दिस वाज अ लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन, नो डाउट। अब एक सेफ वाल्व आ गया है जो कि एक टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर ब्रांड ऑफ वाल्व लेके आ रहा है, जिससे कारण सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो जाता है गैस लीकेज में। देव एस्टैब्लिश्ड अ लार्ज इन्वेंट्री, क्योंकि काफी सारे वो लेके आ गए हैं, बट स्ट्रगलिंग टू गेन फुटहोल्ड, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है उनका। तो एक एनजीओ है जो कि मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करती है, इट हैज अपील टू डीप सी टू रिप्लेस देयर एग्जिस्टिंग वाल्व्स विद प्रोडक्ट सेफ वाल्व। However, the installation of new valve will require suitable substantial modification in the pipeline, entailing unknown challenges in installation and maintenance. Which of the following reasons, if true, can deep sea best cite to publicly reject the appeal? तो अब एनजीओ कह रहा है यार देखो, मरीन लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए तो आप ये सेफ वाल्व लगा लो। तो इनको दे के नॉट रिजेक्ट द प्रपोजल ऑल्सो ऑन सम वेरी फ्लिम्सी ग्राउंड या कोई ऐसा ही किसी ग्राउंड पे। दे हैव टू गिव अ वेरी सॉलिड रीजनिंग विच इज गुड फ्रॉम अ पब्लिक पर्सपेक्टिव ऑल्सो, एंड पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से जो अच्छी हो। तो यहाँ पे आप पैसे वैसे की बात नहीं कर सकते कि ये बहुत महंगे हैं या इनके पास में ये नहीं है वो नहीं है। अब ये लिखा है ए सेफ ऑल डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन इंपोर्ट्स एंड मे बी प्रोन टू प्रोक्योरमेंट इश्यूज। मे बी प्रोन, हाउ डू यू नो? हैव यू गॉट एनी ट्रैक रिकॉर्ड? आप अगर ये बोल के रिजेक्ट कर रहे हो तो वो आपसे ये पूछेगा ना कि आप ऐसा एग्जाम्पल लेके आओ कि कहाँ पे वो सप्लाई नहीं कर पाया। दूसरी बात, यहाँ लिखा हुआ है दे हैव ऑलरेडी गॉट अ लार्ज इन्वेंट्री, तो दैट शुड बी इनफ, एंड इट इज स्ट्रगलिंग टू गेन फुटहोल्ड विद अदर्स आर नॉट बाइंग। देयरफॉर ये इन्वेंट्री फिर आप ही के लिए रहेगी, एंड देयरफॉर यू कैन बी रीजनेबली अश्योर्ड ऑफ द सप्लाई। तो ये एक गलत होगा आपका कहना कि इट डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन इंपोर्ट्स एंड मे बी प्रोन टू प्रोक्योरमेंट इश्यूज। दिस वुड बी अ flimsy excuse, and it will not be good for a company like this to say this। तो ये गलत है। इट इज a reputed brand and had a partnership with deep sea for a long time। ये तो उल्टा, दो ये तो मतलब आप एक एथिकल टाइप की चीज आएगी कि पार्टनरशिप है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो बेटर प्रोडक्ट मिल रहा है तो भी आप उसको रिप्लेस नहीं करोगे। सो दिस इज अगेन नॉट अ गुड रीजन। It follows Goval follows the strictest global industry standards of leakage prevention। This definitely can be given। देखो यार, हम गोवाल लगाते हैं और गोवाल के स्टैंडर्ड स्ट्रिक्टेस्ट हैं इंडस्ट्री में। therefore why should we need to use these? जो प्रोटेक्शन ऑफ मरीन लाइंस है वो वैसे भी हो रहा है यहाँ पे। so this is a good reason, we'll keep it। only some developed countries have mandated the use of new valves। now only some developed countries have mandated, तो ये एक रीजन नहीं है कि सिर्फ डेवलप कंट्रीज कर रही हैं यूज तो हम नहीं करेंगे, वी विल रिजेक्ट इट। ऐसा नहीं है, राइट? यू हैव टू गिव अ सॉलिड रीजन। दिस इज अ वेरी वेरी वेग रीजन। द न्यू वाल्व्स कॉस्ट ट्वाइस एज मच। अगेन कॉस्ट कॉस्ट की बहुत बात यहाँ पे आप पब्लिकली नहीं करेंगे।
बिकॉज पीपल विल देन से दैट यू वांट टू मेक प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ एनवायरमेंट, एक्सपेंस ऑफ मनी लाइफ। तो लोग जो है आपके इंटेंशन को गलत समझेंगे। यू विल अर्न अ बैड पीआर इन दिस केस, बिकॉज यू आर saying that just because they are expensive or twice the cost we will not use it, क्योंकि ये सब बहुत सेंसिटिव चीजें होती है। यहाँ पे अगर लीकेज हो गया, ब्लो आउट हो गया, तो इट कैन बी कैटास्ट्रोफिक फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो। देयरफॉर यू कांट जस्ट गिव अ रीजन ऑफ प्राइस हियर। तो इसलिए ये गलत है। करेक्ट आंसर 3 है। तो देखिए हमारे तो ऑलरेडी ग्लोबल स्ट्रिक्टेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है, देन व्हाई डू वी नीड टू रिप्लेस? दिस इज अ वेरी रीजनेबल way to reject publicly this appeal. Now, startup Safe Valve has started importing a technologically superior brand of valves from abroad, which boasts a significant reduction in gas leakage. An update to industry safety regulations come out which allow the lower number of valves in a pipeline network, yet technologically superior valves similar to those imported by Safe Valve are used for the entire network. तो ये कह रहा है कि अब एक इंडस्ट्री रेगुलेशन आए हैं, उसमें उन्होंने अलाउ कर दिया है लोअर नंबर ऑफ वाल्व्स। तो अगर पहले आप समझो 100 वाल्व यूज करते थे, तो अब आप 20 यूज करके काम चला सकते हो पूरे नेटवर्क में, अगर सेम हो तो। डीप सी अगर दैट मोर द नंबर ऑफ वॉल्स द बेटर इज डीप सी एबिलिटी टू कंटेन ब्लोआउट्स। अब एक चीज ये जरूर है कि अगर आपके पास ज्यादा वाल्व है तो आपके ब्लोआउट बच सकते हैं। ब्लोआउट बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट रिजल्ट्स इन अ लॉट ऑफ इश्यूज, जैसे यहाँ बताया हुआ है इसमें कि वाल्व्स जो है वो उसके कारण आपका एनवायरमेंटल डैमेज होगा, स्टैगरिंग कॉस्ट होती है, रेपुटेशन लॉस होती है। सो इन्हें ये पता है कि हमें जितने ज्यादा वॉल्व्स होंगे उतना ज्यादा हमारी एबिलिटी टू कंटेन ब्लोआउट्स। हाउएवर हायर नंबर ऑफ वॉल्व्स इंक्रीज द चांस फॉर लीकेज। Therefore, Deep Sea is contemplating a proposal to reduce the number of valves to almost half by replacing the existing valves with the valves sold by Safe Valve. तो ये जरूर है कि हायर नंबर ऑफ वॉल्व से चांस ऑफ लीकेज बढ़ जाता है, लेकिन ब्लोड बच जाता है। तो ये सोच रहे हैं कि क्या हम नंबर ऑफ वॉल्व्स हाफ कर दें, ये 100 की जगह 50 कर दें। तो a team tasked with evaluation of the proposal has made some observation listed below. Which of the observation is most helpful in rejecting the proposal? तो ये प्रपोजल लेके आने वाले हैं कि हम अपने 100 से 50 कर देते हैं। क्योंकि ठीक है, ज्यादा होते हैं तो उससे लीकेज के चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन एक चीज और है कि ज्यादा होने से ब्लो आउट बच जाता है। राइट, सो नंबर ऑफ वाल्व्स is directly proportional to the ability to contain blowout, but the number of valves is inversely proportional to the chance of gas leakage. तो आपको दोनों में एक बैलेंस बिठाना है कि ब्लोआउट की भी पॉसिबिलिटी ना हो और लीकेज की भी पॉसिबिलिटी ना हो, और उसको रिजेक्ट करना है आपको। There is no clear industry standard for minimum number of valves required at a certain level. That's okay. There is no clear standard. But this is not the basis. वो तो यही कह रहा है कि मिनिमम आप कम लगा लो। So this is not uh, going to help them, right? If there is no clear standard for the minimum number of walls, he is not trying to put minimum number of walls in any case. So we can't say that this will be helpful in rejecting. If the go valve is obtained to prevent a blowout, the chance of leakage from the walls within a certain distance increases. Now see, this one will basically be helpful in accepting the proposal कि अगर आप गो वाल्व के वाल्व खोलते हो ब्लोआउट प्रिवेंट होने के, तो लीकेज जो है वो बढ़ जाता है। राइट, चांस ऑफ लीकेज फ्रॉम द वॉल्व्स विद इन अ सर्टेन, तो जितने ज्यादा आपके वॉल्व्स होंगे उतना लीकेज की चांस बढ़ जाएगी। So therefore, it will be better that you have fewer number of valves. Therefore, it will be better that you accept the proposal and not reject the proposal. So this is wrong. The superiority of the safe valve products is only in terms of preventing leakage, not blowouts. So that's okay. No? That's okay. This is not going to help him reject because वो तो preventing leakage ही है ना, वो यही कह रहा है कि which boasts a significant reduction in gas leakage. He is not even claiming that it will prevent blowout, right? So not because of this. See, यहाँ पे गो वाल्व हो या दूसरा सेफ वाल्व, the idea is not that any of them prevents blowouts. The idea is that this company is aware that more the number of valves, the better is the ability to contain blowouts. So therefore, he's not even expecting this blowout containment from this particular valve, and therefore this is wrong. At level 1, the chance of a pressure rise is much lesser compared to other two levels. This is okay. Level 1 की बात कर रहा है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। At level 3, a blowout results in more time-consuming extensive repairs compared to the other two levels. तो अगर आपने यहाँ पे कम वाल्व लगाए
right? Suppose you reduce the number of valves to half, which means you are increasing the chance of blowout, right? Because the more number of valves, the better the ability to contain blowout. So by reducing the number of valves, you are increasing the possibility of a blowout, and if a blowout happens, then it results in more time-consuming and expensive affairs. Therefore, this will definitely help them in rejecting. यार हमने अपना लीकेज प्रिवेंशन तो कर लिया चलो, लेकिन ब्लोआउट की हमने पॉसिबिलिटी बढ़ा दी, और ब्लोआउट जो होता है उससे बहुत ज्यादा डेंजर है. ब्लोआउट इज मच मच मोर डेंजरस देन लीकेज. लीकेज होने के बाद तो आप चलो उसको रिप्लेस कर दो, बट अगर ब्लोआउट हो गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. एंड देयरफॉर फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर. Miss Vinita Lama, a respectable figure, and she was stranded on the road when her old small hatchback car broke down. Finding herself alone on the deserted road with no one to help, Vinita in desperation called Sham Saigal, the general manager of Balaji Motors, the only dealership in Jampur that sells Diplomatico cars, the brand that Vinita drives. Vinita knew Sham from her frequent visits for getting her hatchback service. Surprisingly, arrived in 15 minutes, तो आ गया एक मैकेनिक लेके और उसके व्हीकल को टो करके घर ले गया. ऑन द वे बैक उसने कहा यार अपनी कार आप चेंज कर लो, और नई एसयूवी आ गई है, बड़े अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगी आप, और उसको काफी एडिशनल सर्विसेज भी दे देंगे, मिल जाएगी आप. ड्यू टू हर old car's frequent breakdowns, Vinita decided it was a time to replace it. She was afraid whether buying a Diplomatico SUV from Balaji Motors as suggested by Sham will be a right decision for her. ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि उसका उसको लग रहा था कि क्या इससे खरीदना मेरे लिए राइट डिसीजन होगा. Which of the following pieces of additional information will help her the most in taking the right decision? Right decision is whether to buy this or not. A new dealership of Panther Motors, the highest selling car brand, is about to come to the town soon. Now, will this be very helpful to her? ठीक है, इट इज गोइंग टू कम. कब आएगी, वो क्या लेके आएगी, उसका क्या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होगा, उसकी एसयूवी कैसी होगी, वी डोंट नो. इट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल. In Jampur, SUVs have a 6 month waiting period. However, one red colored Diplomatico SUV, not her favorite color, is available at Balaji Motors. So obviously, she will not be. SUVs have a 6 month period, और एक रेड कलर्ड डिप्लोमेटिक एसयूवी है वो अवेलेबल. तो क्या ये राइट डिसीजन लेगी कि इसकी गाड़ी खरीदी जाए? राइट नाउ अगेन 6 months वेटिंग पीरियड है, तो कोई जरूरी नहीं है, यू कैन ऑलवेज वेट, राइट. सो टेकिंग द राइट डिसीजन मीन्स you say that okay, I want to buy, so fine, waiting period है तो ठीक है. Waiting period does not mean that she will be deterred, so this is not going to help. Her brother staying in a metro city has advised her to stay away from diplomatic cars. अब उसका भाई जो है वो एसयूवी चलाता है और वो एक मेट्रो सिटी में रहता है, तो ऑब्वियसली उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा डिप्लोमेटिक कार. वो उसको एडवाइस कर रहा है कि इनकी कारों से दूर रहो. सो दिस शुड हेल्प हर द मोस्ट इन टेकिंग द राइट डिसीजन, isn't it? Jampur with an old city with congested roads has a parking problem. देखो पार्किंग प्रॉब्लम मेनी एरियाज में है, तो पार्किंग प्रॉब्लम के कारण कोई गाड़ी नहीं लेता, ऐसा तो सुनने में नहीं आया अभी तक. ऑलरेडी उसके पास में गाड़ी थी, ठीक है, भले छोटी हो, बट डज नॉट मीन दैट कि वो गाड़ी लेके नहीं जाती थी. जो लोग, अगर जिन्हें पार्किंग प्रॉब्लम की इशू होता है तो फिर वो गाड़ी खरीदते नहीं, दे विल ट्रैवल बाय बस और ट्रेन, व्हाटएवर इट इज. सो शी वाज एनीवे मूविंग अराउंड इन अ कार, therefore this will not help her in taking any decision. She has no idea which SUV to choose. She feels all SUV the same. Again, this is not going to help her to arrive at the right decision. So गलत है. करेक्ट आंसर 3 है कि उसके भाई ने उसको साफ बोल दिया कि दूर रहो. तो दिस कैन हेल्प हर इन मेकिंग द राइट डिसीजन, राइट. Tom's satisfaction of meeting the month's quota for selling SUVs turned to dismay when one of his young executives nervously told him that he mistakenly punched an extended warranty for free to Vinita's purchase contract earlier that morning. This could not be reversed from company system and meant a loss of 19,000 rupees for the dealership. Executive was very sorry, ready to take accountability, however the amount was too large. तो एक एग्जीक्यूटिव ने 19,000 रुपीज की फ्री वारंटी एक्सटेंडेड उसको पंच कर दी ऑर्डर में, विदाउट रियलाइजिंग कि ऐसा कुछ है नहीं इसमें, और बाद में इन्होंने रियलाइज किया कि ये हो गया. तो एग्जीक्यूटिव जो था वो 19,000 रुपीज का ब्लेम लेने को तैयार था, लेकिन ये कह रहा था कि नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है तुम्हारे लिए. तो ही वॉज नॉट कंसर्न अबाउट प्लेसिंग अकाउंटेबिलिटी, वो तो ठीक है, लेकिन ये लॉस कैसे चुकाया जाए, कैसे वापस लिया जाए, तो उसको श्योर नहीं था कि वेदर ही शुड आस्क वनीता फॉर द मनी. तो इनमें से कौन से जो पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है विल हेल्प श्याम मोस्ट लाइकली स्टॉप श्याम फ्रॉम ट्राइंग टू रिकवर मनी. तो इन किस बेसिस पे वो बोलेगा ठीक है छोड़ो पैसे.
He's aware that Vinita is very happy with the deal he gave her for the car. That's okay, but this should not prevent him from trying to recover the money. Vinita feel that he feel that Sham Diplomatico software is complicated, which might have also played a role in the error. तो इसके कारण Diplomatico software system is complicated for new employees, which might have also played a role in the error. See, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन गलती तो हुई है और इंसान से गलती हुई है. ही शुड चेक. अगर सॉफ्टवेयर सिस्टम में प्रॉब्लम है तो इंसान चेक तो करता ही ना उसको साइन करने के पहले. सो दिस इज नॉट द रीजन दैट ही विल not recover. Vinita has a wide network and can connect Sham with many potential customers. Yes, this seems to be a good reason. देखो, आपको उससे रिकवर मनी करके गुडविल खराब नहीं करनी है. राइट. वेरी हैप्पी तो ठीक है, वेरी हैप्पी इज जस्ट एन आइसोलेटेड फैक्ट. बट हियर विनीता का वाइड नेटवर्क है और आपने अगर उसको पेस्टर किया पैसे के लिए तो शी मे नॉट देन सजेस्ट द कार टू मेनी पोटेंशियल कस्टमर्स. Vinita's brother has enough knowledge of how car dealers operate. This is irrelevant. इसका कोई सेंस नहीं है. Sham feels that if he maintains the current sales volume, he might be able to pursue a diplomatic write off the amount. तो अगर उसकी बिक्री अच्छी हुई तो 19,000 रुपीज राइट ऑफ हो जाएगा. Then this is also a good reason. So C and E are good reasons that Sham will not go and ask for money. अब 3 महीने में इसकी कार हिट हो गई. इंजर्ड तो नहीं हुई, एसयूवी बहुत बैडली इंजर्ड हो गई. तो जब वो कार को रिपेयर के लिए गई, उसने कहा कि आपको कोई भी खर्चा नहीं होगा क्योंकि एक्सटेंडेड वारंटी जो है उससे सब कवर हो जाता है. तो विनीता बोली यार ये तो मैंने ली नहीं है. तो उसने शाम को बोला, तो शाम ने कह दिया उसको कि देखिए वो मिस्टेकनली पंच हो गई थी और मिस्टेक रिवर्स नहीं हो सकती. तो शाम बोर द कॉस्ट ऑफ 19,000. तो शाम वो 19,000 रुपये अपनी जेब से दिए. He further added that Vinita should consider it a gift from Balaji Motors for purchasing the highest price diplomatic SUV. तो विनीता को गिफ्ट समझ आई. As Vinita wrote back home, she wondered if she should pay 90,000 to Sham since the extended warranty came to her that day. क्या उसे 19,000 रुपये शाम को देने चाहिए? Most compelling rationale for Vinita to justify not paying 19,000. उसको इनमें से कौन सा रीजन जो है वो हेल्प करेगा ये कहने में कि शाम को मत दो पैसे. Sham would have come back to her if he had needed the money. See, it's not necessary. Sham may have felt very, very embarrassed going and asking for money, or Sham may be waiting for the right, whatever it is. So this is not really going to be a good rationale कि नहीं पैसे देने उसको. राइट. ये नहीं है कि उसके पास, कई लोगों को जरूरत होती है लेकिन वो आते नहीं है आपके पास में, तो ये रीजन नहीं है कि आप उसको नहीं दोगे. Mistake happened 3 months back is water in the bridge. That's again not going to be the reason. ये अब तो 3 महीने हो गए. 3 महीने हो गए तो 3 महीने कोई 3 साल भी नहीं होते. एंड दिस इज नॉट द रीजन. शी पेड मोर फॉर डिप्लोमेटिको एसयूवी कंपेयर टू द प्राइस ऑफ सिमिलर एसयूवी. नाउ शी पेड मोर, दैट्स ओके, बट ये पैसा जो था, ये पैसा तो डिप्लोमेटिको के पास गया ना, शाम के पास तो नहीं गया. 19,000 रुपीज. राइट. हैड दैट, सी शाम ने अपनी जेब से 90,000 रुपीज खर्च कर दी और वो सोच रही है कि मुझे शाम को वापस करने चाहिए कि नहीं करने. तो वो ये सोच के अगर नहीं वापस करे कि तो मैंने डिप्लोमेटिको एसयूवी ज्यादा में खरीदी, तो डिप्लोमेटिको एसयूवी के पैसे तो डिप्लोमेटिको वालों को गए ना, शाम को तो नहीं गए. सो दिस इज नॉट द रीजन. Had the accident not happened, she would not have been aware of the warranty. Again, this is not the reason why she would not give 90,000. अब तो पता चल गया ना उसको. She is aware that her expensive SUVs like her dealer often offer extended warranty. अब ये एक ऐसा रीजन है कि उसको पता है कि देखिए कई बार एक्सपेंसिव एसयूवी खरीदते हैं तो डीलर्स हमें एक्सटेंडेड वारंटी दे देते हैं. इसने मुझे नहीं दी. हो सकता है वो कहानी बना रहा हो या हो सकता है कुछ और हो. वो तो देते हैं दूसरों को, मुझे क्यों नहीं दी? therefore I am entitled to this 90,000 rupees. Therefore I will not give. So therefore this looks to be the best among these options of why she should not think about paying $19,000 to rupees to. रास्ता स्मॉल इंडस्ट्रियल टाउन है. यहाँ पे एक स्टील प्लांट है, एसोसिएटेड एंसिलरी कंपनीज हैं. मोस्ट ऑफ द रेजिडेंट्स वर स्टील प्लांट एम्प्लॉइज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स. Town offered employment opportunities, lacked an airport. Those wanting to fly, the nearest airport was in Michaelganj, 100 kilometers from Kasta. To reach the airport, people rented taxi services available at Kasta, and Prabhu was one such taxi service provider. Prabhu के rates reasonable थे. Trip to airport cost 2,200, but for round trip 3,000. Yet it was not just the affordability that made him popular. His reputation for punctuality and reliability was unmatched.
When it came to ensuring the safety of women, he would always be the first choice. तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे. इसकी ट्रस्ट वर्जन इतनी थी कि जब सोलो फीमेल विजिटर्स होती थी इसको भेजते थे. जब भी रेजिडेंट्स की पर्सनल कार में इशू होता था दे वुड टर्न टू प्रभु फॉर हेल्प. लेकिन कोविड के बाद में मुश्किल हो गई, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन सेफ्टी कंसर्न से प्रभु की ट्रिप्स बहुत कम हो गई हैं और फाइनेंशियल स्ट्रेन हो गया. He was weighed down by debts, but things improved when COVID travel restrictions were lifted. Having faced financial hardships, he sought to offset his losses by raising the fare. Yet he was aware of the stiff competition, where many others offered services at similar fare. Decided to increase the taxi fare for all future trips. He planned to charge rupees 3,000 for a one-way trip and 1,000 more for two round trip. तो 2,200 से बढ़ा के 3,000 हो गया एंड 3,000 से बढ़ के 4,000. Which of the following will best help Prabhu's regular customers in accepting the increase in fare? किस बेसिस पे उसके फेयर इंक्रीज करेंगे, करना एक्सेप्ट करेंगे उसके रेगुलर फेयर? बिकॉज प्रभु ऑफर्स रिपेयर सर्विसेज टू रेजिडेंट्स कार रिलेटेड इश्यूज. नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू फ्लाई बिकॉज जरूरी नहीं है कि जो सारे रेगुलर कस्टमर्स हैं उनकी कार ही रिपेयर कर. कुछ कस्टमर्स होंगे जिनकी कार उसने रिपेयर कर दी होगी या हेल्प की होगी. तो डज नॉट मीन दैट एवरी वन ऑफ हिज रेगुलर कस्टमर्स वुड बी इंटरेस्टेड इन दैट. तो दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन. बिकॉज प्रभु इज पंक्चुअल एंड रिलायबल. यस, पंक्चुअल और रिलायबल में उसका कोई मैच नहीं है. देयरफॉर डेफिनेटली they might be willing to consider giving him his increased fare. Because Prabhu serves too many officials. ये तो इसका कोई सेंस नहीं. ये तो इनफैक्ट अनएथिकल भी हो गया कि आप सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं उनके उनको करते हो तो हमें भी करो. Because the cost of living has gone up. In fact, this is the other way around. अगर cost of living has gone up, तो they would have less money. And if they have less money, then they would not be willing to give more to Prabhu. तो हर जगह से जब अगर cost of living बढ़ जाती है तो हर जगह से आदमी काटने की कोशिश करता है. So this is not a good reason. बिकॉज प्रभु इज फेसिंग फाइनेंशियल हार्डशिप. ये प्रभु अगर ऐसे हम हर किसी की फाइनेंशियल हार्डशिप्स में घुस के और अपने एक्सेप्ट करने लगे तो हो गया. राइट, वी ऑल्सो आर फेसिंग फाइनेंशियल हार्डशिप्स. देयरफॉर दिस इज नॉट गुड. करेक्ट आंसर इज सेकंड. उसकी जो यूएसपी है दिस इज अनमैच्ड एंड देयरफॉर they will accept the increase in fare because obviously all things being same, दूसरे भी जो वेंडर्स आ गए हैं लेकिन इसकी पंक्चुअलिटी और रिलायबिलिटी अनमैच्ड है तो उसके लिए उसको एक्सेप्ट कर लेंगे. After Prabhu increased his charges by 30%, revenue flow was promising, especially from steel plants official trips. After a few months, he noticed a dip. When exploring, he realized the women traveling solo still preferred. Some of his regulars were choosing his competitors and when traveling as family. However, knew that his competitors, when charging lower than him, were still tardy and sometimes cancelled at the लास्ट मिनट. तो अब हुआ ये कि पहले तो 30% उसका चार्जेस बढ़े तो रेवेन्यू फ्लो अच्छा प्रॉमिसिंग था, लेकिन धीरे धीरे उनकी ऑफिशियल ट्रिप्स के कारण, लेकिन धीरे धीरे प्राइवेट बुकिंग में कम हो गया. तो वुमेन जो जा रही थी वो तो प्राइवेट उसके बाद जा रही थी, लेकिन जो रेगुलर कस्टमर थे वो अपनी फैमिली के साथ जब जाते थे तो कॉम्पिटिटर के पास जाते थे. तो उसको पता है कि उसके कॉम्पिटिटर जो है वो कम उससे लेते हैं लेकिन वो लेट लाते हैं, स्लो है और कैंसिल भी कर देते हैं लास्ट मिनट. Which of the following will best help प्रभु to retain his revenue flow? किस तरीके से उसका रेवेन्यू फ्लो बरकरार रहे? सी रेवेन्यू फ्लो बरकरार रखना है आपको. तो चार्ज अ प्रीमियम फॉर स्टील प्लांट्स ऑफिशियल. यू कांट डू दिस. सी इफ यू वांट यू स्टार्ट डिस्टिंग्विशिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, हो सकता है कि जो ऑफिशियल वाले हैं वो फिर अपने आप को बता दें कि हम तो पर्सनल लेवल पे जा रहे हैं. सो यू वुड नॉट नो इफ अ पर्सन इज ट्रैवलिंग ऑफिशियली और पर्सनली. सो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन. स्टिक टू हिज करंट इंक्रीज चार्जेस. यस, आप अगर अपने ही इंक्रीज चार्जेस पे रहो. जो लोग अपनी फैमिली के साथ में कॉम्पिटिटर के पास जा रहे हैं उनको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि लास्ट मिनट पे कैंसिलेशन होता है, ढीले होते हैं, दे विल मिस सम फ्लाइट्स एंड देन दे विल रियलाइज कि हमें यहीं पे कंटिन्यू करने में बेटर है. सो लेट हिम हैंग ऑन. गिव 50% डिस्काउंट फॉर पर्सनल ट्रिप्स. ये तो उसका रेवेन्यू फ्लो कहाँ से हो जाएगा फिर? बिल्कुल ही गलत है. एंड 50% अगर आप पर्सनल ट्रिप्स पे दे रहे हो तो ऑफिशियल ट्रिप्स वाले भी मांगेंगे आपसे. सी इफ यू आर गिविंग टू समबडी एक्स पर्सन ऑन अ पर्सनल ट्रिप, तो हाउ वुड यू देन व्हेन द सेम पर्सन ट्रेवल्स ऑन ऑफिशियल विजिट, हाउ वुड यू टेल हिम दैट पे मी डबल? सो ये गलत है. यू कांट डिस्टिंग्विश. रिवर्ट द प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज टू प्रायर रेट. प्रायर रेट पे करने से उसको और नुकसान होगा क्योंकि अब तो कॉम्पिटिटर भी आ गए हैं तो उसका वॉल्यूम वैसे ही कम हो गया है और उसका रेवेन्यू जो है वो कम हो जाएगा. इट विल नॉट रेवेन्यू फ्लो रिटेन नहीं होगा उसका. राइट, आपको रेवेन्यू फ्लो को रिटेन करना है. सो दिस इज नॉट करेक्ट. चार्ज अ प्रीमियम व्हेन वुमेन ट्रैवल सोलो. अगेन यू कांट बी चार्जिंग प्रीमियम. राइट, फिर तो वो छोड़ देंगे. करेक्ट आंसर है
सेकंड, सरोज, द न्यू CFO, यूज द सर्विसेज ऑफ मनोज व्हेन ही फर्स्ट ट्रैवल्ड फ्रॉम माइकलगंज एयरपोर्ट। मनोज वॉज राइवल ऑफ प्रभु। तो मनोज जो है एक दूसरा टैक्सी वाला है, और सरोज, उसको जब पता चला कि सरोज जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग सर्विसेज फॉर स्टील प्लांट, चार्ज ओनली 1500। Further, he assured Saroj to charge the same for a one-way trip and additional rupees 500 for a round trip. तो ये तो गड़बड़ हुई। उसने क्योंकि उसको पता चला कि सरोज पूरे प्लांट के लिए हायर करेगा, तो उसने उसको कम रेट दे दिया। Upon realizing that plants utilize Prabhu's services for all official trips, Saroj contacted Prabhu to discuss the rates offered by Manoj. Inquired why the plant should continue using his service when Manoj provided the same at a lower price. अभी एक नया आया है, उसको तो पता नहीं है कि ये जो इसकी सर्विसेज कैसी हैं। ही इज नॉट हिमसेल्फ टेस्टेड, तो वो कह रहा है यार तुम मुझे भी कम में दे दो। प्रभु रियलाइज दैट मनोज चार्ज एन एक्सट्रीमली लो प्राइस जस्ट टू पुश प्रभु आउट ऑफ हिज बिजनेस इन द स्टील प्लांट। तो उसने तो ये बहुत ही इस तरह की प्राइस चार्ज की है जो कि अनसस्टेनेबल है, जस्ट टू पुश हिम आउट। तो उसको क्या करना चाहिए? प्रभु शुड टेल सरोज दैट मनोज इज अनरिलायबल एंड टार्डी एंड वुमेन आर अनसेफ विद हिम। नाउ दिस ही कैन नॉट डू सो। ओके, आप अपने आप को अच्छा बताने के लिए अपने कॉम्पिटिटर को नीचा नहीं दिखा सकते, अनलेस यू हैव वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल्स, अनलेस दिस पर्सन हिमसेल्फ हैज एक्सपीरियंस्ड। ये तो यही कहेगा ना कि ठीक है, आप तो बोलोगे ही, यू विल ऑब्वियसली यू विल accuse Manoj of all being all this, right? So yeah, it is not a good answer. Prabhu should warn Saroj. Warn. Saroj is the chief financial officer. You can't warn. It is a very threatening word. This is wrong. Prabhu should request Saroj to talk to a few of his colleagues before taking decision. Yes. उसको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि देखिए आप थोड़ा सा बात कीजिए अपने कलीग से, मेरी सर्विसेज के बारे में वो बताएंगे आपको, जो मैं इतने टाइम से चले आ रही है, कितना मेरे एडवांटेजेस हैं। तो दिस इज अ गुड ऑप्शन, that he should request Saroj. Saroj will go and talk to the other people and realize कि हाँ यार यही बंदा सही कह रहा है। प्रभु शुड ऑफर टू लोअर हिज प्राइस। ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा, फिर उसका तो रेवेन्यू आधा हो जाएगा। दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ही शुड इंट्रोड्यूस सरोज टू निधि तावड़े, इज रेगुलर कस्टमर। ये क्या हो गया? तो निधि तावड़े कौन है, क्या है, हमें कुछ नहीं पता। तो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। करेक्ट आंसर इज 3। यहाँ पे ये मिस्टर सिंह है, जो कि एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, और उनके पास टू हेल्प्स हैं, विमला और शारदा। विमला रिस्पॉन्सिबल क्लीनिंग है एंड शारदा इज कुकिंग। और शारदा एक बार बीमार हो गई और 3 दिन की छुट्टी पे चली गई। जब शारदा आई तो उसे पता चला कि इसकी गोल्ड रिंग जो थी, गिफ्ट था मदर का, वो चोरी हो गई है या मिसिंग है। तो मिस्टर सिंह को लगा कि विमला ने चोरी की और उसे डिसमिस कर दिया। मिस्टर सिंह आज शारदा टू टेक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लीनिंग हाउस, और उसकी सैलरी डबल कर दी। शारदा एक्सेप्टेड द ऑफर बिकॉज प्रीवियस टू जॉब्स वर लॉस्ट ड्यू टू फ्रीक्वेंट हेल्थ रिलेटेड एब्सेंसेस। इसको बड़ी मुश्किल से ये काम चलाती थी, तो उसको हेल्प हो जाएगी इससे। जब वो साफ कर रही थी टेबल, ड्रेसिंग टेबल, तो उसको गोल्ड रिंग मिल गई। Overjoyed, Mr. Singh expressed his gratitude by presenting Shada a reward of 1,000 rupees. However, he made no mention of reinstating Vimla. तो विमला को उसने वापस लाने की कोई बात नहीं की। शारदा was contemplating whether she should inform Vimla that she found Mr. Singh's ring. शारदा अब सोच रही थी, क्या मैं विमला को इन्फॉर्म कर दूं? Which of the following consideration will best dissuade Sharda in sharing the information? कौन से इसमें से ऑप्शन तो आप बताएंगे जिसके कारण इसको डिसवेड हो जाएगी, दैट मीन शी विल not tell or share the information along about the ring. Whenever Sharda was absent, Vimla used to help her by taking over her responsibility. तो ये तो, in fact, this should encourage her to tell, because this show that she was bearing her load, she was sharing her responsibilities. तो विमला अच्छा कर रही थी, तो इससे तो बल्कि शारदा will be compelled to share the information, not dissuade. So this might persuade, not dissuade. So this is wrong. Mr. Singh will probably terminate Sharda if he gets to know that she has revealed the information. ये हो सकता है। देखिए मिस्टर सिंह ने, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर सिंह ने विमला को क्यों नहीं बताया, ये समझना चाहिए। तो देखो, आपने अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगाया है और अब वो इल्जाम गलत हो गया, तो आप क्या जाके एक्सेप्ट करोगे दुनिया के सामने? बिकॉज दैट विल पुट यू इन अ वेरी बैड लाइट, दैट विल मेक यू, दैट विल मेक इट अपीयर एज इफ यू डू थिंग्स विदाउट इवन सेकेंड थॉट, एंड यू डोंट केयरफुली इवेल्युएट व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आप
अगर कोई भी सिचुएशन में आते हो तो आप इमीडिएटली कोई भी एक्शन ले लेते हो. दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट वेरी गुड और वेरी वेल ऑन मिस्टर सिंह. तो अगर मिस्टर सिंह दुनिया को जाके बता देते हैं कि मैंने तो गलत निकाला था, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक एंड ऑल्सो इट विल नॉट पुट हिम इन गुड लाइट, ही विल नॉट बी ट्रस्टेड बाय मेनी पीपल अगेन. देयरफॉर ही इज डिसाइडेड नॉट टू गो एंड टेल विमला और रीइंस्टेट हर. तो अगर ये जाके शारदा बता देती है तो खाली किस किस किसको पता है इस चीज के बारे में, मिस्टर सिंह को और शारदा को. तो अगर विमला के पास में इन्फॉर्मेशन, तो विमला तो ऑब्वियसली आएगी लड़ने के लिए. विमला हो सकता है कहीं जाके पुलिस में कंप्लेंट ना कर दे या कोई और कुछ ना कर दे. तो ऑब्वियसली मिस्टर सिंह डज नॉट वांट, वुड नॉट वांट विमला विमला टू नो. तो अगर ये विमला को बताई थी तो मिस्टर सिंह माइट प्रोबेबली टर्मिनेट हर. तो ये रख सकते हैं. Chadha is not keeping well and Mr. Singh warned her that her frequent absences could lead to her termination. इसका लिंक क्या है इससे, इसमें एब्सेंस कहाँ से आ गई बीच में? So this is not a good option. Vimla already knows she has not stolen anything, so telling her will not give any new information. No, no, ऐसा नहीं है. New information she has not stolen, पर अगर उसको पता चलेगा कि वो रिंग वहीं पे मिल गई ड्रेसिंग टेबल के नीचे, तो obviously she'll be very hurt and she'll feel very bad because वहीं पे थी and she was accused of this theft. So telling her will definitely give a lot of new information. This is not the reason. Had Vimla done her job properly, she would have found the ring and avoided the incident. Now, अब जरूरी नहीं है ना कि ये उसने अपना जॉब प्रॉपरली किया नहीं किया, वहां पे नहीं मिली. हो सकता है कई बार चीज वहां पे नहीं दिखी हो या कुछ और बीच में हो नहीं दिख रही हो. तो वी कांट से दैट शी हैड डन हर जॉब प्रॉपरली और नॉट. करेक्ट आंसर सेकंड है इसमें. ही विल प्रोबेबली टर्मिनेट शारदा इफ ही गेट्स टू. 2 महीने निकल गए और शारदा की इंप्रूव्ड हेल्थ और डेडिकेशन से शी स्टार्ट वर्किंग 3 more houses. Vimla was dismissed for 2 more houses, primarily due to ring incident. News of discovery of lost ring had not become public, and Sharda wanted to help Vimla. Sharda is contemplating over possible actions. अब काफी टाइम हो गया उसके बाद में. See, this is not now immediately after the incident. So, 2 months have passed. तो चीजें थोड़ी अब अलग हो गई. तो शारदा जो है वो सोच रही है कि किस तरह से मैं उसको हेल्प करूं. Divulged to Vimla's employers in the housing society that she has found the ring. Now she can go and tell, ये रिंग मेरे को मिल गई थी, इसको क्यों निकाल रहे हो तुम, इसकी गलती नहीं थी. इट इज ओके. कन्फ्रंट मिस्टर सिंह अबाउट कंसीलिंग. कन्फ्रंट तो नहीं कर सकते आप अपने एम्प्लॉयर से, बिल्कुल गलत वर्ड. क्विट द जॉब एंड आस्क हिम टू कंसीडर ऑफरिंग दैट. व्हाई वुड ही डू दैट? और मिस्टर सिंह क्या उसको ले लेंगे? किस बेसिस पे ले लेंगे मिस्टर सिंह? तो आपकी तो जॉब जाएगी जाएगी शारदा जी, विमला को भी नहीं मिलेगी. तो दिस इज अ वेरी बैड ऑप्शन. इन्फॉर्म विमला दैट द रिंग हैज बीन फाउंड एंड एडवाइज हर टू डिमांड कॉम्पेंसेशन फॉर टार्निशिंग हर इमेज. ऐसा कुछ नहीं. दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प बिकॉज दिस इज टेकिंग ए नेगेटिव स्टैंड. तो नेगेटिव स्टैंड नहीं लेना है हमको. We can't take a negative stance. We have to, we start going and confronting people and advising her to them to demand compensation. ये गलत है. Inform as many domestic helps the housing society as possible as that she had found the ring. तो इससे क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक हेल्प थोड़ी नौकरी दे रहे हैं विमला को. विमला को तो नौकरी दे रहे हैं हाउस जो ओनर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं. तो उनको जाके बताओ ना. डोमेस्टिक हेल्प को बताने से क्या होगा? करेक्ट आंसर इज 1. News of discovery became public. Domestic helps in society were chagrined, means disappointed by the treatment, disappointed bitterly, treatment meted out to Mullah, and the fact that news was not made public immediately. They wanted to ensure that they would not get targeted every time something was missing. तो डोमेस्टिक हेल्प जो है अब वो बड़े दुखी हैं कि आ, जरा सी भी कहीं कुछ चीज मिस हो जाएगी तो हमारे ऊपर इल्जाम आ जाएगा. विच इज द फॉलोइंग विल बेस्ट मिनिमाइज द चांस ऑफ एम्प्लॉयर सस्पेक्टिंग द डोमेस्टिक वर्कर्स. तो अब हमें जब भी कोई चीज मिसिंग हो तो एक एम्प्लॉयर सस्पेक्ट ना करे डोमेस्टिक वर्कर को, इसको मिनिमाइज करना है. तो डोमेस्टिक वर्कर्स को डेली सर्च करा दो सिक्योरिटी गार्ड से व्हेन लिविंग सोसाइटी. यस, दिस लुक्स टू बी ओके. आपने एक बार उसको सिक्योरिटी गार्ड से सर्च करा दिया तो दैट मीन्स कि नाउ नोबडी कैन से कि आप लेके गए हो कि नहीं गए हो. करंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स शुड बी सबमिटेड. ये तो पहले से भी हो गई उनके पास में. इससे क्या हो जाएगा? इससे इससे ये कैसे प्रिवेंट हो जाएगा कि आप डोमेस्टिक वर्कर्स को सस्पेक्ट नहीं करोगे? So this is totally wrong. If there is a suspicion, the security guards will first conduct a thorough search of the affected house. तो थॉरो सर्च से क्या जरूरी है कि चीज मिल जाए? और दूसरा, थॉरो सर्च होने से क्या ये जरूरी है कि डोमेस्टिक हेल्प के ऊपर से सस्पेक्ट सस्पिशन हट जाएगा? राइट. ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि इसके ऊपर से सस्पिशन हट जाएगा. तो सपोज करो कि
किसी ने चुरा ली, ठीक है, और अगर देयर टू थिंग्स हियर, राइट, सम लैंडलॉर्ड और सम हाउस ओनर रिपोर्ट्स दैट मेरी रिंग मिसिंग है, जबकि उसकी रिंग जो थी वो बाहर ही मिसिंग हो गई थी। दैट मीन्स वो घर जब आया था उसके पहले ही कहीं खो के आया था। अब सपोज करो कि घर में रिंग, उसने कह दिया कि मेरे तो घर में रिंग मिसिंग हुई, और सिक्योरिटी गार्ड ने आके सर्च करना शुरू कर दिया और उनको नहीं मिली, तो क्या आप सस्पेक्ट नहीं करोगे मेड को? करोगे ही करोगे। तो इससे मेड को सस्पेक्ट या हेल्प को सस्पेक्ट करना बंद नहीं हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि आपने अगर कोई मिसिंग चीज बताई है और ऑलरेडी सर्च कर चुके हैं सबको, तो फिर बोल सकते हो कि नहीं, उन्होंने नहीं है। When a domestic worker is terminated on suspicion of theft without proof, they will have to be paid at least 1 month salary in full. इससे क्या हो गया? इसका तो कोई लिंक नहीं है। एम्प्लॉयर विल हैव टू पब्लिकली अपोलोजाइज इफ डोमेस्टिक वर्कर कैन प्रूव द इनोसेंट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है कि मिनिमाइज द चांस दैट एम्प्लॉयर सस्पेक्टिंग देयर डोमेस्टिक वर्कर्स, कि उनको सस्पेक्ट करने का चांस ही रिड्यूस हो जाए। ये तो बात की बात है, सब सस्पिशन ऑफ थेफ्ट हो रहे हैं इन दोनों केस में। दैट मीन दिस इज नॉट गोइंग टू मिनिमाइज। ऑलरेडी आप सस्पेक्ट कर रहे हो उनको, जबकि आपको तो सस्पिशन ही रिड्यूस करना है। देखो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज वन। सिंबॉलिस इज एन अपकमिंग मीडियम साइज आईटी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। 1% एम्प्लॉइज को एनुअल परफॉर्मेंस बोनस मिलता है इस बार, एंड दिस इज डिसाइड बाय कमिटी फॉर्म बाय डिफरेंट फंक्शन हेड्स। जब नलिनी को एनुअल बोनस फर्स्ट टाइम मिला, तो शालिनी जो थी उसकी कलीग, वो उसने उसको कहा कि देखिए, ये जो आपको मिला है, दिस इज लेस अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर परफॉर्मेंस एंड मोर अ रिकग्निशन ऑफ दोज हु हैव fostered a strong rapport with the powers that be. That means you are close to the top people and therefore you have got this bonus. Incidentally, Shanley had never received any performance bonus in her tenure. तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि नलिनी को जब ये बोनस मिला, तो उसकी जो कलीग है एक, शालिनी, शी मेड अ कमेंट दैट ये इसको कैपेबिलिटी के कारण नहीं मिला, बल्कि इसलिए मिला बिकॉज शी वाज क्लोज टू द टॉप पीपल. Shalini's comments deeply hurt Nalini, especially since she had always considered Shalini to be a close friend. Nalini felt like declining the bonus given her respect for her and relationship with Shalini. उसका मन हुआ एक बार तो कि वो बोनस को डिक्लाइन कर दे, और उसे बहुत बुरा लगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इफ ट्रू विल बेस्ट डिसुएड नलिनी फ्रॉम डिक्लाइनिंग द बोनस? अब इसमें से कौन सा एक रीजन है जो देख के वो बोनस डिक्लाइन नहीं करेगी? शी विल नॉट डिक्लाइन द बोनस. शालिनी इज नोन फॉर कन्फ्रंटिंग हर बॉस वेन एवर दे चेंज डेडलाइंस. इसका क्या लेना देना है कि शालिनी इज नोन फॉर, शालिनी अपने बॉस से भिड़ जाती है जब भी वो डेडलाइन चेंज करते हैं, तो हाउ विल दिस लेट नलिनी स्टॉप फ्रॉम डिक्लाइनिंग द बोनस? ये तो कोई लिंक नहीं है इसका. शालिनी गुड एट हार्ट इज नोन फॉर मेकिंग इनसेंसिटिव कमेंट्स. यस, शालिनी दिल की बड़ी अच्छी है, लेकिन वो इस तरह के इनसेंसिटिव कमेंट करती रहती है, तो इसलिए इससे बुरा मत मानो एंड डोंट डिक्लाइन द बोनस, दैट विल बी वेरी बैड. सो दिस डेफिनेटली द गुड रीजन. वेरी फ्यू पीपल हु आर नॉट कंसिडर्ड रॉयल रिसीव द बोनस. ये तो रीजन है रिटर्न करने का, कि सिर्फ लॉयल लोगों को ही दिया जाता है, बाकियों को दिया नहीं जाता. अगर ऐसा ट्रू है, देन दिस इज अ रीजन फॉर हर टू डिक्लाइन द बोनस, नॉट डिसुएड फ्रॉम डिक्लाइनिंग. दैट मीन्स अगर मुझे पता चले कि यार मेरे को बोनस मिला है जो कि किसी को भी नहीं मिलता जो कि लॉयल नहीं है, तो मतलब मेरे को लॉयल समझा जा रहा है, तो देन शी माइट बी जस्टिफाइड इन डिक्लाइनिंग द बोनस. देयरफॉर दिस इज रॉन्ग. Shalini's irreverent comment about the previous boss pushed her out of the team. तो इससे क्या हो गया? सो दिस विल नॉट डिसवेड नलिनी फ्रॉम डिक्लाइनिंग द बोनस, क्योंकि देखो, नलिनी का डिक्लाइनिंग द बोनस कहाँ से आ रहा है? वो उसकी पर्सनल फीलिंग्स जो शालिनी के लिए है उससे आ रहा है. तो अब शालिनी का किसी से जो भी रिलेशनशिप हो, वो किसी को कन्फ्रंट करती हो, कुछ भी कमेंट करती हो, उससे क्या लेना देना? ये आपस की नलिनी और शालिनी की बात है, तो वहीं पे सेटल होगी. तो वो इसलिए सेकंड ऑप्शन में ही सेटल होती दिख रही है. इन आर क्लोज ग्रुप नलिनी इज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द बोनस. दैट्स ओके, बट डज इट मीन दैट शी शुड डिक्लाइन? नो, एब्सोल्युटली नॉट. करेक्ट आंसर इज टू हियर. कि नलिनी और शालिनी में यही है कि शालिनी, उसको पता है कि थोड़ा सा इंसेंटिव बात कर देती है, तो ठीक है, लेट मी फॉरगेट फॉरगिव हर, तो इसलिए ये डिक्लाइन नहीं करेगी. Since receiving the performance bonus, she noticed a change in how her teammates behaved with her. They appeared indifferent towards her. तो उसके जो टीममेट्स थे वो उससे दूर दूर रहने लगे. Although there were no major issues, she could not help but sense that her teammates began having perceive her as a close relationship with the top brass following her recent accomplishment. तो उन्हें भी ये लगने लगा कि ये तो टॉप वालों से क्लोज है, तो वो उससे दूर रहने लगे. Nalini assumed that her teammates might be influenced by Shalini. Consequently, they seemed to be avoiding informal interactions with her. तो नलिनी ने अज्यूम किया कि उसके जो टीममेट्स हैं वो शालिनी से इन्फ्लुएंस होके इस तरह की कर रहे हैं हरकतें, एंड दे सीम टू बी अवॉइडिंग इनफॉर्मल इंटरेक्शंस.
As Nalini had to rely on the support of her teammates, what Nalini can do best to normalize, तो उसको क्या करना चाहिए? Do nothing, ये तो बिल्कुल ही गलत है. Confront, ये बिल्कुल नेगेटिव. Start saying negative things, बिल्कुल गलत है. Invite, अब देखो आपके पास दो ऑप्शन. Invite her teammates for dinner on the weekend. Talk to her teammates regarding their indifference. Which is the better? Better is fifth year and not fourth, because आप इनवाइट तो कर लोगे, पर क्या वो आएंगे, इसकी क्या गारंटी? ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि दे सीम टू बी अवॉइडिंग इनफॉर्मल इंटरेक्शंस विथ हर. सो इवन इफ यू इनवाइट देम फॉर डिनर with a good intention and good heart and all your genuineness, they may not come. So then this is a wasted opportunity. तो आप उनको वीकेंड पे घर पे ना बुलाओ, बल्कि टॉक टू हर टीममेट्स रिगार्डिंग देयर डिफरेंस, राइट? उनसे बात करो. डोंट कन्फ्रंट, जस्ट टॉक टू हर कि यार क्या प्रॉब्लम हो गई, आप लोगों को क्या लग रहा है, बात नहीं कर रहे हो, इनडिफरेंट हो. सो टॉक टू देम. सो टॉक, बात करने से बातें बनती, एंड देयरफॉर दिस लुक्स टू बी द करेक्ट आंसर. इसमें फोर्थ और फिफ्थ में कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन फिफ्थ फोर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि आप उनको डिनर पे इनवाइट कर दो तो वो आएंगे ही नहीं, तो फिर वी आर बैक एट स्क्वायर वन. A significant project arrived at Symbolis and Nalini was chosen to spearhead. She was given the autonomy to create her own team to collaborate and drive this project to success. He wanted to build a team where each of the team member worked with great camaraderie. As Nalini had previous experience of working with a client, Nalini offered her to join the team. However, Shalini expressed her willingness to work on the project only on condition she would be appointed as team leader. अब यहाँ पे एक टीम बनी जिसके अंदर इसको दिया गया लीड करने का. उसको अपनी टीम बनानी थी. उसे पता था कि शालिनी को एक्सपीरियंस है उस क्लाइंट के साथ काम करने का. तो उसने कहा कि टीम में आ जाओ. शालिनी ने कहा कि मैं तभी आऊंगी जब मुझे टीम लीड बनाया जाए. तो टीम लीड या तो नलिनी बनेगी या फिर शालिनी बनेगी, दो में से एक ही बनेगा. Nalini was aware that client was very difficult to work with. Of the previous three projects, the client with the only the one where Shalini was a team member was successfully completed. तो उसको शालिनी की बहुत इसमें जरूरत भी है, बिकॉज क्लाइंट इज वेरी डिफिकल्ट. और एक ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हुआ है जिसमें कि शालिनी थी टीम में. सो तो यहाँ पे सिचुएशन फंस गई है थोड़ी सी कि शालिनी को टीम में रखना भी है, लेकिन शालिनी जो है वो टीम लीड बन के आना चाह रही है. शी डजंट वांट टू जॉइन एज अ टीम मेंबर. विच इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर नलिनी रिगार्डिंग द इंक्लूजन ऑफ शालिनी? फॉर्म अ टीम विदाउट शालिनी एंड इन्फॉर्म हर बॉस. इससे क्या मतलब? आपको तो इंक्लूड करना है उसको, विदाउट शालिनी थोड़ी जाना है, तो ये तो गलत है. टेल हर बॉस दैट शालिनी शुड लीड द टीम एज शी हैड वर्कड विद द क्लाइंट बिफोर. ये क्या डिसीजन? तो आप भी हट गए ऐसे. सो इसमें अगेन सबका फायदा नहीं हुआ, आपका भी फायदा होना चाहिए, उसका भी होना चाहिए. तो आप तो खुद ही हट गए वहां पे. राइट, यू वर चोजन टू स्पीड एंड यू आर सेइंग दैट शालिनी शुड लीड द टीम, so this is wrong. रिक्वेस्ट बॉस टू ऑर्डर शालिनी, ये तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से शर्किंग अवे वाली बात है, कि अवॉइडिंग डिसीजन मेकिंग, कि आप उसको ऑर्डर दो. ये गलत है. कंप्लेन अबाउट शालिनीज एटीट्यूड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ऐसा कुछ नहीं है. यू शुड नॉट गो अबाउट कंप्लेनिंग एंड बिचिंग अबाउट पीपल. आस्क शालिनी टू रिकंसिडर दिस प्रोजेक्ट कैन बी इंपॉर्टेंट. यस, देखो ये शालिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मेरा भी रहना जरूरी है इसमें, मुझे चूज किया गया है. और आपने कस्टमर के साथ इतनी अच्छी रिलेशनशिप बना के रखी, तो व्हाई डोंट यू रिकंसिडर इट? इट विल बी ग्रेट इफ वी कैन वर्क टुगेदर. यू विल आल्सो बेनिफिट एंड आई विल आल्सो बेनिफिट. दिस इज द राइट आंसर. Alright, so I hope by way of this particular session, you would have got some idea how to handle these particular questions. So just to reiterate, मैं आपको ethical decision लेने हैं. Don't go by your preconceived notions. Look for the maximum utility or benefit of maximum number of people. Don't try to avoid decision making here. Don't take negative or extreme kind of decisions. So इतनी चीजें आप ध्यान में रखेंगे और थोड़ा केयरफुली रीड करना है. Many times I have seen that people miss certain word and mark wrong answers. So you have to be careful about that. Before we go, if you still want to ramp up your preparation for ZAT or even NMAT or SNAP for the remaining of days, then you can get in touch. The booster course, you can still join. We have still plenty of sessions to go where you will be taken through detailed workshops, VARC, decision making, critical reasoning, logical reasoning. So if you are still looking for a booster, do get in touch with us on any of these channels. Thank you so much and have a good day ahead.